Good morning, my dear respected students. Today, we are again begin with the concept of SQL and hope you are understanding in a very easy manner. My dear respected students, now we are just begin with the concept of SQL commands, and here it is. In previous lecture, I think so we discussed about some arithmetical operator, and now we are just begin with the relational operator. And my dear respected students, most of you having knowledge of that particular system of relational operator, but otherwise it's my humble request to kindly concentrate and watch the practicals, because it is very important to understand each and everything in a very gentle manner. My dear respected students, these are the relational operators. We all know about these things. Is equal to, greater than, less than is equal to, greater than is equal to, not equal to. But we are just supposed to apply these with the help of a practical demonstration here. My dear respected students, I am just going to mention a data type a database that is Aman, and we are just going to begin with the table what we have declared in our previous session. I think so it works okay. It's work that is a S70. My dear respected students, very simple queries. For example, select star from, okay, select star from, that is S17, where जहां पे क्या हो. For example, I am just mentioning where gender is equal to male, and hit the enter key and the display that these are the content where gender is to be considered as a male. Next says, they say select star from S17 where we can mention, for example, DOB is greater than, for example, we are mentioning 1997, after that 0101 and 01, and hit the enter key. Where there is a greater than, they display the content. Again, select star from, and for example, if we mention here it is a less than, again they provide the information based of that particular criteria. And my dear respected students, same is to be happen with the help of the less than is equal to and greater than is equal to. But the last point which we are discussed about this relational operators here, that is a not. My dear respected students, what we are going to do here, select star from S17 where for example we mention here that R number is not equal to. There is an operator which says when we use both less than and greater than, this is to be considered as not. Roll number not में क्या होगा? Not, that is for example 5. तो आप यहाँ पे देखेंगे it display the content of that particular table excluding, छोड़ के किसको? That is a roll number. Sir, any other way for using this? Yes, why not? Again we are happening, and rather than using this not operator, we are supposed to mention exclamation is equal to, which says R number is not is equal to 5. Again we are supposed to hit the enter key, and this says okay, this happens. Again, sir, some other way if you are going to suggest, yes, why not? I am just going to mention roll number is equal to 5. Sir, what are you doing? We are supposed to exclude, but you are supposed to include that thing. Okay, sorry, I'm just going to perform this thing again, and rather than writing R number is equal to 5, we are supposed to add not. It means the reverse of that particular query, and we are going to hit the enter key, and this says that 5 is excluding. Sir, एक बात बोलूं? सर बोलिए ना सर, एक और कोई तरीका बता दो अगर पॉसिबल है. कहता यार अब पता नहीं होगा कि नहीं, पर चल तू बोल रहा है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. कहता अब क्या करूं? कहता अब यहाँ पे एक मेरे पास है तो सही तरीका. मैंने यहाँ पे लिखा आर नंबर लाइक. पता नहीं यार कहीं लाइक ऐसा तो ना हो कि करेक्टर भी चलता हो. चल देख लेते हैं भाई चला के इसको.
मैंने किया और मैंने लिखा रोल नंबर लाइक 5। एक बार पहले ऐसे चला के देखा, ओ वेरी गुड आ गया। अब मैंने क्या किया, फिर दोबारा एंटर हिट किया, वेयर लगाया। अब मुझे समझ आया कि यार अगर ये चल सकता है तो इसका रिवर्स भी चल सकता है। मैंने यहाँ क्या लिखा, आर नंबर नॉट लाइक 5 और एंटर की हिट कर दिया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जिनको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा जरा, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा। अब कवलजीत सर कहते हैं सर वापस चले, कहाँ चले सर, पीपीटी की ओर। कहता चलते हैं। कहता सर अब क्या हुआ, कहता सर अब यहाँ पे है एसक्यूएल कमांड। कहता अब आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। कहता सर ये तो मुझे आते ही हैं। कहता सुन तो ले यार, तुझे तो सब कुछ ही आता है। कहता इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा कंडीशन जहां पे है वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। सर क्या तीनों लॉजिकल ऑपरेटर में मल्टीपल कंडीशन है? कहता नहीं यार। कहता एंड और नॉट जो है वो बाइनरी है, वो मल्टीपल के लिए यूज होते हैं, पर जो नॉट है वो यूनरी है। इसका मतलब है इसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए और उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। कहता सर आप जरा ध्यान से देखिएगा। कहता ध्यान से, कहता हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, मुझे मैसेज आ रहे हैं सर वॉइस कनेक्ट नहीं। ओके हिमांशु जी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। अच्छा अब इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे लेकर आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब कहता है हम इसको और पे कंसीडर कर रहे हैं। कहता देखिएगा सबसे पहले एंड और फिर नॉट। वैसे नॉट अभी हमने किया भी है पर फिर भी आपको करके दिखा दें, कोई समस्या नहीं। कहता मुझे सिखाया आपने और लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर। वेयर मैंने लिखा n नंबर इज इक्वल टू 5 एंड n नंबर इज इक्वल टू 5 जिसका क्या हो, रोल नंबर क्या हो। या हम ऐसे रोल नंबर नहीं लेते, हम लेते हैं वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 एंड हम लिख देते हैं जेंडर इज इक्वल टू मेल। अब हम देखते हैं कि कहां पे, अब हमने एंड के साथ दो चीजों को कंबाइन कर दिया और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया वो कहता है कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड जेंडर उसका क्या है, दैट इज अ मेल। अब कहता सर इसके इसी सेम चीज को और के साथ कंसीडर करके दिखाइएगा। कहता अब वो क्या करेगा, अब अगर मैंने यहां और डाल दिया उसका अर्थ है या का मतलब वो उन सबकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा जहां पे मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 90 और उन सब की भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा जहां पे जेंडर क्या है एम। मैंने यहां पे डाला एम। अब इस केस में वेयर क्या हुआ, सबके मार्क्स दिखाए जहां पे आपका मेल है जेंडर और आपके मार्क्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 90। कहता सर अब एक चीज और। कहता क्या, कहता सर मैंने यहां लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S70 वेयर। कहता अब मैं सर यहाँ पे ना और की जगह पे मैं और नहीं लिखना चाहता। कहता ऑपरेटर डाल सकता हूँ? कहता चेक कर ले यार, पता नहीं। ओ वेरी गुड आ गया। कहता अब क्या किया, कहता सर अब देखिएगा प्लीज एक और चीज बताना चाहता हूँ। कहता सर क्या, कहता सर एक चीज बताना, अगर मैं एंड ना डालूं, मतलब यहाँ पे आपने और बताया था अगर मैं एंड डाल दूं तो कहता चलेगा? कहता यार देख ले, पता नहीं। कहता एक बार किया, वेरी गुड, इट ऑल्सो वर्क्स। कहता अब लास्ट चीज। कहता सर लास्ट क्या है? कहता वो तो करवा ही दिया था आपने। कहता वेयर, वेयर में अब क्या किया, कहता है यार एक चीज बताना। कहता बता देते हैं। कहता क्या, कहता मैंने लिखा जेंडर इज इक्वल टू मेल। कहता पर मैं चाहता क्या हूं, इसका रिवर्स चाहता हूं। इसका रिवर्स डालने के लिए मैंने क्या लिखा, हियर इट इज नॉट, और मैंने जैसे ही नॉट डाल के जेंडर इज इक्वल टू मेल किया तो वहां पे मुझे सबकी इंफॉर्मेशन नजर आ गई। किनकी इंफॉर्मेशन नजर आई, मैंने उनकी इंफॉर्मेशन देखी जिनके पास जेंडर क्या है, मेल ना होकर जेंडर है दैट इज फीमेल। कहता सर एक और चीज करके दिखाओ। कहता मैंने वैसे ही लिख रहा हूं। मैंने लिखा टाइप क्यों करें, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर। मैं चाहता हूं कि जिनके ना नाम के पीछे जी एच आता है, मतलब नाम के पीछे जी और एच। अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने लिखा मैंने यहाँ पे लिखा
वेयर नेम लाइक, कहता नेम लाइक, कहता ठीक है सर, कहता सिंगल कोट, कहता ठीक है, कहता मेरी तरफ से जो मर्जी हो पहले, इसका मतलब है परसेंटेज का मतलब स्ट्रिंग, मेरी तरफ से जो मर्जी हो स्ट्रिंग, उसके आगे मुझे क्या चाहिए, GH, कहता ठीक है सर। उसके बाद मुझे नहीं पता, चाहे जो मर्जी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मतलब मुझे उन सभी नाम्स को दिखाना है, उन सभी नेम्स को डिस्प्ले करवाना है जिनके अंदर GH आ रहा है। कहता सर एक बार ये करवा के देख ले, फिर नॉट वाला करवाते। कहता मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, अब जहां पे भी किसी नाम के अंदर GH आ रहा था वो चीज डिस्प्ले हो गई। कहता सर अब इसका रिवर्स दिखा दो एक बार। कहता रिवर्स दिखाया, नेम, यार नेम के बाद आएगा मुझे लगता है नॉट, नॉट लाइक डाल के एंटर हिट किया, और जैसे ही किया अब जहां पे GH नहीं आ रहा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। क्या मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? अगर आ गई तो हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मेरा पुत्र, एक हाँ जी हुक्म करिए। हिमांशु नहीं हैगा ना? हिमांशु नहीं हैगा? हिमांशु का मैसेज आया मुझे कि वो बेचारा आया था पर नेट के इशू। हाँ जी हुक्म करिए। सर और वाला एक बार दोबारा समझा दो। ये पहले बोल कौन रहा है मेरा प्यारा बच्चा, ये बोले पहले। सर अमन। अरे वाह मेरा प्यारा अमन। अमन मेरा पुत्र, मेरी गल नूं जरा गौर नाल सुनी मेरा पुत्र। मैं इत्थे की कीता, देख आपां इत्थे पाया वेयर। अब हम चाहते क्या हैं, आप जरा ध्यान से देखने की कृपालता कीजिएगा। मैं यहाँ पे और कंडीशन को ला रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने किया, अब देखिएगा। और अमन और का मतलब थोड़ा सा क्या होता है, एक बार वैसे मेरे से बात कर ले यार 2 मिनट। और का मतलब सर और का मतलब है सर दोनों में से कोई एक कंडीशन। जी हाँ, मतलब कि हमने वो कंडीशन को देखा। जा हाँ अगर जी। हमने कहा ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू हाँ और जी। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यही बोलते हैं ना हम लोग और के केस में। हाँ जी सर। कहता अब क्या हाँ जी। हुआ, कहता इस केस में वो दोनों कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, जब तो मैंने किया क्या, ये देख, जब मैंने यहाँ डाला एंड, उसने अब चेक दोनों कंडीशन करनी है जहां पे मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो और जेंडर मेल हो। उसने एंटर हिट किया, अमन, प्रभ और देव, इन तीनों के मार्क्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं और जेंडर भी इसको सेटिस्फाइड करता है। पर सेम चीज को मेरा पुत्र मैंने यहाँ और लगाया। अब देखना जरा, और मैंने जैसे ही और लगाया मेरा पुत्र, अब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, मैंने एंटर जैसे हिट किया, अमन के मार्क्स 100 है, 90 और मेल दोनों सेटिस्फाइड हैं। प्रप्रीत 90 और मेल दोनों सेटिस्फाइड हैं। देव 90 और मेल दोनों सेटिस्फाइड हैं। बट अगला देखो हिमांशु राणा, तो उसका मार्क सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स 75 है, बट उसका जेंडर क्या है, मेल, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। लास्ट वाला भवबेरी, उसकी भी कंडीशन मार्क्स में सेटिस्फाइड फॉल्स हो रही है, बट उसकी जेंडर में ट्रू हो रही है, इसके लिए उसकी भी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। मेरे पुत्र की अगर कोई और क्वेरी है तो मेरा बेटा मेरे से पूछ ले। सर अगर सर इसमें सभी मेल है, जैसे अगर कोई किसी के 90 अब है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी जी एफ सर, वाले की। जी नहीं, वो आप नहीं सर शो। आप ये नहीं समझ रहे बात को मेरा पुत्र। आप इन्हां दोनों कंडीशनां च देखना ना मेरा पुत्र, मेरा बेटा मेरी गल नूं नहीं हाँ समझ जी रहा। सर। देखना, आपां इत्थे कीता, सॉरी, आपां आ तुहानूं चेक कराया, इत्थे आए, इत्थे आए, इत्थे आए। हुण मेरा पुत्र की कहंदा पिया है, जिहड़ा मेरा बेटा मेरी गल करदा पिया आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा पुत्र कहंदा है कि फीमेल क्यों नहीं आए। मेरा बेटा आ कहंदा पिया। हुण चेक कर जरा अमन, हुण चेक कर, हाँ एक जी। कंडीशन मार्क्स है, एक कंडीशन जेंडर मेल है, एक कंडीशन जेंडर फीमेल है। मैं एंटर किया, हुण जरा चेक कर मेरा पुत्र। हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ग्रेटर देन 90 है, और वो भी आ रहे हैं जिन्हों का मेल है, वो भी आ रहे हैं जिन्हों का फीमेल है। बट जिस जिस चीज को मैं हटाता जाऊंगा, जिस जिस कंडीशन को मैं यहाँ से रिमूव करता जाऊंगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा साहब। अब मैंने यहाँ पे क्या हाँ किया, मैंने यहाँ पे आके कर दिया और जेंडर मैंने एफ कर दिया। ओके, अब ये क्या कर रहा है, जेंडर, अच्छा ये मेल भी उठा रहा है। आप यही डिस्कस करना चाह रहे थे कि ये मेल नहीं उठा रहा पहले? हाँ जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं।
अब हमने इसको फीमेल से करके देखा तो इसने कहा कि वो सबको दिखा रहा है, जो फीमेल में मेल भी आ रहे हैं और फीमेल भी। एक बार हम दोबारा चेक कर लें कि मेल के केस हाँ में जी सर। क्यों गुस्सा करता है। मेल वैसे भी मेरे जैसे होते हैं ना, तो इस सर केस लग में गया पता। क्या चीज। सर क्योंकि वो मार्क्स 90 से ग्रेटर ही नहीं है किसी के फीमेल अच्छा, के। तो इससे पहले हम क्या समझा रहे थे आपको। हाँ अब देख मेरी बात सुन, मेरा पुत्र गौर करने वाली गल है। आ देखो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ फीमेल ਕੀਤਾ मेरा पुत्र, मेरा बेटा। जैसे मैंने फीमेल किया, मेरे पुत्र ने समझने की कोशिश करनी ना कि मार्क्स ग्रेटर देन 90। ठीक है, अब हमने जी। मार्क्स को ग्रेटर देन 90 देख लिया, तो उस केस में फीमेल भी और जेंडर फीमेल लगा दिया, तो उस केस में दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। पर आप क्या कह रहे हैं कि फीमेल को एक बार आप वॉच कर लीजिए, 78, 75, 88, 85। तो जब मैं यहाँ पे इसी चीज को कंसीडर करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, मैं मेल कर देता हूँ, तो उस केस में क्या है, आप क्यों नहीं रही, फीमेल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे वो उस क्राइटेरिया को जस्टिफाइड नहीं कर पा रही। मेरी गल क्लियर है जी। हाँ जी सर। चलो अगली कार्रवाई करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अमन मेरी सारे बच्चे मेरी बात सुने। मेरे प्यारे बच्चों, अब कई बार क्या होता है कि हमें करना क्या पड़ता है, एलियास जोड़ना पड़ता है। एलियास का नाम कैसे, अमन वीर सिंह। ये कहाँ का नाम है, स्कूल का। पर घर का नाम क्या है, घर का नाम हो गया अमन, सिर्फ अमन बोला जा सकता है। कहता क्या हम कॉलम्स में एलियास कर सकते हैं, कहता हाँ जी। कहता चेक करिएगा, मैंने लिखा सेलेक्ट आर नंबर एज। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने एज एक कीवर्ड यूज किया और मैंने डाला रोल नंबर। कहता मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया कि ये आपका जो आर नंबर है ये एज ए रोल नंबर आए। मैंने लिखा कॉमा और मैंने लिखा नेम एज, मैंने लिखा और मैंने यहां डाला STUDENT स्टूडेंट नेम, और मैंने फिर यहां किया और मैंने लिखा फ्रॉम, किस टेबल से भाई, S17 फ्रॉम। मैंने यहां पे आके सेमीकोलन और जैसे एंटर हिट किया, अब कृपया करके चेक करने की कृपालता कीजिए और ये देखिए यहां पे अब टेम्परेरी, याद रखना मेरे बच्चों, कोई गलती से भी ये मत सोच लेना कि ये परमानेंट है, दिस इज नॉट परमानेंट। मैंने लिखा आर नंबर कॉमा नेम फ्रॉम S17 और जैसे हिट किया फील्ड का नाम बिल्कुल वही रहेगा, बट आप टेम्परेरी अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कहता सर कोई और वेरिएशन, जैसे इसमें मैंने नहीं ये सिंगल कोट डालने, मैंने नहीं ये नाम, मैंने एज डालना है। कहता यार नहीं डालना तेरी मर्जी है। कहता पर एक समस्या आएगी उसमें। कहता क्या, कहता आप किसी भी वर्ड के बीच में, जैसे आप रोल नंबर लिख रहे हैं उसके बीच में आपने स्पेस मेंशन नहीं करनी। कहता ठीक है सर। कहता मैं नहीं करता। कहता सर मैंने यहाँ पे डाला, मैंने एंटर हिट किया, अब फिर मैंने देखा विदाउट स्पेस जो मैंने मेंशन किया आर नंबर, रोल नंबर आ गया, नेम स्टूडेंट नेम आ गया। कहता सर ये भी समझ आ गया। कहता सर कोई और एक आधा तरीका बता दो। कहता और बता देते हैं। कहता स्पेस देना है पर स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज कर लो। कहता सर कर लिया। कहता यहाँ पे भी सर अंडरस्कोर कर लिया, एंटर हिट किया और जैसे एंटर हिट किया वो कहता है उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा दी और आपके फील्ड के नाम, आपके कॉलम के नाम को भी चेंज कर दिया। बट ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है, कोई बता सकता है मुझे कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट। टेम्परेरी। वाह वाह वाह, ये टेम्परेरी है। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा अब हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखने की कृपालता कीजिएगा मेरे प्यारे शिष्यों। अब हम अगली कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं। कहता सर क्या है कि आपने तो यहाँ लिखा, ये लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, टेबल का नाम दिया। कहता सर टेबल का नाम तो आ गया। कहता सर ठीक है, वेरी गुड, आ गया। कहता सर टेबल के नाम को रीनेम किया जा सकता है टेम्परेरी। कहता कर तो सकते हैं पर उसमें एक परेशानी है। कहता क्या, कहता मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहता S17 एज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। पर कहता क्या सर मैं बाद में, गुरलीन कौर चाना जी मैंने अगर बाद में इसको स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन के नाम से बुलाऊंगा तो क्या ये आएगा। कहता बिल्कुल नहीं आएगा। कहता कब तक चलेगा,
कहता ये रीनेम सिर्फ तब तक होगा जैसे ही आपने एंटर हिट किया और जैसे ही ये प्रोसेसिंग शुरू हुई उस दौरान ही इसका नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर मैं इसको गलती से भी मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और मैंने जैसे एंटर हिट किया उसने बोला कि अमन डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों चीजें टेम्परेरी मोड पे हो रही हैं, परमानेंट मोड पे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है रीनेम करना, बट वो जिसे हम कॉलम को ऑल्टर से करते हैं, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम अलियास का यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ अ टेम्परेरी मोड दैट इज नॉट अ परमानेंट मोड। कहता सर कृपया करके ध्यान को आकर्षित कीजिए। कहता कर लिया सर। कहता सर ये तो हो गया। कहता वेरी गुड। कहता अब ये देखो जो अलियास की कहानी हम अभी पढ़ के आए हैं। कहता हो गया। कहता सर अब ये नहीं पढ़ी। कहता कौन सी? पुटिंग टेक्स्ट इनटू द क्वेरी आउटपुट। कैसे मुझे लिखना है? मैं लिखना है अमन वीर गॉट 100 मार्क्स। कहता सर ये कैसे लिखे वहां पे? कहता अच्छा देख लेते हैं भाई, चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने ना एक चीज देखी, मैंने लिखा सेलेक्ट। यार अमन का नाम मुझे कहां से मिलेगा यार? कॉलम के अंदर नेम। मैंने लिखा सेलेक्ट नेम। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं कोई क्वेरी लगाऊं, मैं क्वेरी लगाऊंगा, मैंने कहा सेलेक्ट नेम। कहता अमनवीर तो आ गया। कहता अब मैंने अपनी तरफ से कुछ डालना है, तो मैंने लिखा कॉमा डाल के सिंगल कोट में लिखा गॉट भी लिख लिया। गॉट हाउ मेनी मार्क्स? 100 मार्क्स। यार मार्क्स भी अवेलेबल है। मैंने फील्ड का नाम डाला, मैंने लिखा मार्क्स। कहता ठीक है। कहता अब मैंने ये भी लिखना है ना अमनवीर गॉट 100। ये मार्क्स तो सिर्फ 100 दिखा रहे हैं। मैंने लिखा MARKS मार्क्स। कहता अब कहां से? मैंने लिखा फ्रॉम S17 और जैसे एंटर हिट किया कहता ये तो सबके इंफॉर्मेशन आ गई। कहता कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ? अगर सबकी नहीं चाहते तो वेयर क्लॉज लगा लीजिए, दैट इज रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ओ वहां आ गया। और मैंने लिखा जैसे एंटर हिट किया उसने सिर्फ मुझे अमन की इंफॉर्मेशन दिखा दी। क्या मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अमन का हाथ आया सबसे पहले देव का। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। रमेश जी आपका हार्दिक तौर पे अभिनंदन करते हैं आने के लिए, पर थोड़ा सा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा जल्दी है पर कोई बात नहीं यार, फिर भी आ गया, शुक्र है भगवान का। ओके सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ए भी टेम्परेरी है? मेरा पुत्र मेरी गल समझने की कोशिश करियो। ए भी टेम्परेरी है गाया मेरा बेटा। उसका अर्थ क्या है प्रभप्रीत सिंह जी? ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दिखा रहे हैं, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजर। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं मेरे बेटा जी। अब जब तक आप ये सिंगल कोट में गॉट मार्क्स ये ऐड नहीं करोगे तब तक वो स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनका जो बाय डिफॉल्ट इनका जो मोड है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मेरे पुत्र मेरी गल समझ आ गई है जी? हाँ जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब अगली कार्रवाई पे। कहता सर ये तो मुझे आता है। कहता तुझे तो भैया सारा कुछ ही आता है। कहता फिर क्या चक्कर करें? कहता सर स्पेशल ऑपरेटर। कहता बिटवीन आता है। कहता ठीक है सर। कहता इन भी आता है सर। कहता सर वेरी गुड। कहता कंडीशन लाइक। कहता वो भी आती है सर। कहता दो चीजें हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। कहता अब तैयार हो जो फिर। कहता सर हो गए। अब मैं एक एक करके तुमसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि तुम कहोगे खुद ही करते रहते हैं, टीचर भी खुद ही, स्टूडेंट भी खुद ही, करना भी खुद ही, करवाना भी खुद ही। आ जाओ भाई फिर जिसको मैं अच्छा बोलने से पहले मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है, किसी ने घबराना नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना। जिसका नाम बोल दिया गया अगर उसका नेट कनेक्शन ठीक है, स्टेबल है, तो उसने बोलना शुरू कर देना है। जतिन जी, जतिन बालू साहब अनम्यूट करिए कृपया करके। यस सर। जतिन मेरा क्वेश्चन है, उनकी इंफॉर्मेशन दिखा दे S17 टेबल में से जहां पे मार्क्स जो हैं वो 70 से लेके 90 तक हैं। क्या लिखूं बता? सर सिलेक्ट हाँ लिख स्टार ली। फ्रॉम S17।
मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, बिल्कुल सही है, आगे बोल। वेयर वेयर डाल दिया। अब मार्क्स मेरे ख्याल से हमने कितने 70 to 90 बोले है ना? हाँ बोलो। वेयर रेंज बिटवीन रेंज बिटवीन, रेंज तो यार कोई था नहीं मेरे ख्याल से, रेंज बिटवीन तो कोई नहीं था। सर वेयर मार्क्स बिटवीन वेरी 70 एंड गुड, 90 मार्क्स बिटवीन, वेरी गुड। कहां से कहां तक बेटा? 70। 70 हाँ एंड आगे 90 एंड 90 के और 90, हाँ मतलब ये देख ले कि कहीं हमने आज तक कभी बिटवीन के बीच में और लगाया है, या सिंटेक्स और लगाने की अनुमति देता है कि एंड की अनुमति देता है? क्या लिखूं बोल इसमें, और लिखूं कि एंड? अब पेजेस नहीं, पेजेस नहीं आगे पीछे करने, मेरी तरफ देख के बता। एंड के और जल्दी बोल दे, 1 2 3 4 5 फटाफट। सर एंड तुक्का सही लग गया तेरा। एंड 70 एंड 90, और जैसे हिट किया नजर आ गया, कहता ठीक है। अच्छा अब रोमित, रोमित मेरी आवाज आ रही पुत्र? यस सर। मेरा पुत्र, अब इसका ना मैंने उनकी इंफॉर्मेशन दिखानी है जिनके मार्क्स 70 और 90 के बीच में ना आते हो। क्या लिखूं बोल भाई? मार्क्स नॉट बिटवीन। पहले मैंने ये लिख दिया, और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखूं, इसमें क्या एडिशन करूं बता? मार्क्स नॉट बिटवीन। मैंने यहाँ पे डाला मार्क्स नॉट और एंटर हिट कर दिया। वेरी गुड, उनकी इंफॉर्मेशन आ गई जिनके मार्क्स 70 और 90 के बीच में नहीं आ रहे। वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब नेक्स्ट नाम है मेरा, मेरी बेटी का, रवलीन का। हाँ जी सर। रवलीन पुत्र, मेरे को ना उनकी इंफॉर्मेशन दिखा दे, मेरे को उनकी इंफॉर्मेशन दिखा दे जहां पे रोल नंबर 1 है, जहां 3 है, और जहां 5 है। अब कैसे दिखाऊं यार, समझ नहीं आ रही कुछ। सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन जहां पे 1 3 और 5 रोल नंबर है। सर वेयर। पहले ये ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, ये ठीक है, वेयर लगा दिया। बोल हाँ आगे। हाँ जी। हाँ जी बोलो। रोल नंबर इन। रोल नंबर इन, वेरी गुड। फिर सर लिस्ट में 1 3 एंड 5। मैंने लिखा 1 3 एंड 5, और मैंने ये कर दिया। अच्छा इसको किसी और तरीके से रवलीन कर सकते हैं पुत्र? मैंने अगर वैसे देखूं तो मैंने यहाँ पे किया वेयर, मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू 1 और रोल नंबर इज इक्वल टू 3 और रोल नंबर इज इक्वल टू 5। मेरे को सेम चीज मिल जाएगी, बट याद रखना ये इन का प्रयोग हो ही इसीलिए रहा है कि ये मल्टीपल टाइम में और का प्रयोग ना हो, इसलिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी आवाज मेरे मनवीर तक जा रही हो, मेरे मनवीर तक, मेरा प्यारे तक, मनवीर मेरा बेटा, मुझे उनकी इंफॉर्मेशन दिखानी है जिनका रोल नंबर 1 3 और 5 ना हो। सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी select गुड। asterisk from S17. एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कर दिया, ये लिख दिया तेरे लिए, बिल्कुल आगे बोल बेटा। Where हाँ RNO not in 135. मैंने यहाँ पे कर दिया जो तूने बोला, और मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर नॉट डालू यहाँ पे, नॉट हाँ इन जी सर। 1 3 एंड 5, और उनकी इंफॉर्मेशन नजर आ गई। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मनवीर जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अब अगली कार्रवाई, और तैयार हो जाओ। अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। प्रीत की बारी आ गई। प्रीत, यस सर। मेरी बेटी, मेरे को ना वहां पे प्रीत, मेरे को ना उनकी इंफॉर्मेशन दिखानी है जिनके नाम के बीच में ए और यू आ रहा हो। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे करना है, पता नहीं। ए और यू सर आए, हाँ वेरी गुड, मैं कर रहा हूँ, बोल। select asterisk from S17 वेरी गुड, where name। बिल्कुल सही है जी। मैंने यहाँ पे डाला, मेरी बेटी ने बोला नेम डालो, मैंने डाल दिया। हाँ जी आगे। सर फिर इसके बाद वो परसेंटेज वाला साइन, इसके बाद परसेंटेज वाला name is साइन equal to इज, AU नहीं, नेम परसेंटेज, उसके आगे क्या डालूं? name like
नेम लाइक करूं पहले, लाइक? हाँ यस जी, सर। हाँ जी, आगे बोलो। AU। अब ये परसेंटेज के बाद डालूं AU के पहले डालूं बेटा? सर बाद। ठीक है, मैंने डाल दिया AU, ठीक है। सर इसके बाद फिर से ये वाला साइन। परसेंटेज डाल दिया। अब और क्या करूं? सर सिंगल कोट्स। इसके बीच में आगे पीछे दोनों जगह पे मैंने सिंगल कोट कर दिए और अब सेमीकोलन डाल के एंटर हिट किया। जिनका भी नाम के अंदर AU आ रहा है उनकी इंफॉर्मेशन नजर आ गई। अच्छा, अब मेरी बात, नेक्स्ट आ जाए मेरा बच्चा, नेक्स्ट मेरा पुत्र आ गया, मेरी बेटी तनीषा। तनीषा आ जाओ भाई जरा, एक मिनट। तनीषा, जिनके भी नाम के अंदर थर्ड करेक्टर ए आता है, थर्ड करेक्टर, सुन ले मेरी बात ध्यान से, जिनके भी नाम के अंदर थर्ड करेक्टर ए आता है उनकी इंफॉर्मेशन आ जाए, बाकियों की रहने दे। क्या लिखूं मेरा पुत्र? Just select star from S17. एक बारी मेरी पुत्र रुका। हाँ, लिख दिया। हाँ जी, बोलो आगे। वेयर भी आ गया, आगे बोलो। Name like. हाँ, Sir single quotes में पहले 3 times underscore. अब ये देख ले कि तीसरे करेक्टर पे ए आना चाहिए, तीसरे Sir करेक्टर 2 times underscore. 2 टाइम अंडरस्कोर। हाँ जी, डाल दिया। बोलो आगे। फिर सर A और परसेंटेज का साइन। फिर ए और परसेंटेज, परसेंटेज मीन स्ट्रिंग। और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, अमन के भी थर्ड करेक्टर पे ए आ रहा है, प्रभ के भी थर्ड पे ए आ रहा है और भव के भी थर्ड पे ए आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अब देखना जरा एक मिनट। अब हमने अपनी पीपीटी की तरफ भी एक बारी देख ले कहां तक पहुंचे। अब नेक्स्ट आया मेरे बच्चों, सॉर्टिंग इन एसक्यूएल, दैट इज द ऑर्डर बाय क्लॉज। ध्यान से देखना, कहता ऑर्डर बाय इज यूज्ड टू परफॉर्म असेंडिंग मींस A to Z एंड डिसेंडिंग मींस Z to A। कहता सही है। कहता असेंडिंग के लिए कौन सा? ASC, पर कहता याद रखिए ये बाय डिफॉल्ट है। कहता ठीक है सर। कहता और डिसेंडिंग के लिए कीवर्ड कौन सा? DESC। कहता इधर ध्यान से देखना, आ गया। मैंने यहां लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17 और उसके बाद एंटर हिट किया, लिखा ऑर्डर बाय। कहता ऑर्डर बाय, कहता किसके अकॉर्डिंग टू दिखाना चाहते हो? मैंने कहा नेम के अकॉर्डिंग टू। और जैसे मैंने एंटर हिट किया, ध्यान से देखने की कृपालता कीजिए, सारे के सारे नाम जो हैं आपके एक ऑर्डर में आ रहे हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। कहता अब सर इसको अगर डिसेंडिंग में करना हो, कहता क्या करूं? फिर दोबारा यहां डाला। अब यही देखो, अगर मैं यहाँ ASC कर देता तब भी आउटपुट बिल्कुल सेम आती, बट क्यों? क्योंकि ये ASC बाय डिफॉल्ट है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब कहता है यहाँ पे मैंने किया बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा DESC और जैसे एंटर हिट किया, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए, उसने क्या किया? उल्टे ऑर्डर में दिखा दिया, दैट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सर एक बात पूछनी है आपसे जल्दी से। कहता अगर मैं 2 केसेस में करना चाहूं, इधर देखना जरा, अब 2 जगह अगर मैं इसको सॉर्टिंग करना चाहूं, मैंने सबसे पहले बिना दिमाग लगाए हुए मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने कहा नेम कॉमा, इसका मतलब नेम असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, और मैंने कर दिया मार्क्स, और अब मार्क्स भी असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। मैंने एंटर हिट किया। आप जरा ध्यान से देखना, वहां पे नेम तो सॉर्टिंग में आ गए, बट आपको मार्क्स सॉर्टिंग में नजर नहीं आ रहे। बट अगर मैं लॉजिक लगा के करूं और मैं सोच के करूं कि मेरी आउटपुट क्या आने वाली है, उस केस में अगर मेरे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया जेंडर। मैंने कहा यार सबसे पहले ना सॉर्टिंग जेंडर में हो जाए, A to Z। कहता हो गई। कहता उसके बाद क्या? कहता यार उसके बाद ना तू नेम के अकॉर्डिंग टू करा दे। कहता सही है। कहता अब मैंने जैसे एंटर हिट किया, पहले जेंडर देखना। कहता जेंडर में F पहले आ गया, F। उसके बाद क्या आया? M, सारे आ गए। अब देखो जरा, अब फीमेल्स के अंदर क्या हुआ? फिर दोबारा जो सॉर्टिंग हुई वो असेंडिंग ऑर्डर पे, गुरलीन, लवदीप, रवलीन, तनीषा। कहता सही है। कहता अब मेल में देखो सॉर्टिंग जो हुई असेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या हुआ? अमन, भवबेरी, देव जलोटा, हिमांशु एंड प्रप्रीत। जिनको मेरी